We prepared for only writing the exam, only filling the OMR sheet. We were not prepared for कि मेरे को एग्जाम के बीच में the examiner will ask me to paste my passport size photo on a sheet in the same 45 minutes जिसमें मुझे पेपर भी करना है, रिवाइज भी. Therefore, I am saying कि बोर्ड्स अच्छा करो, चाहे जो भी हो. Be grateful to at least yourself for showing up every day. Okay. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Swati and I'm currently studying in Daltram College, Delhi University. So this video is related to CUET क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कैसे होगा, कैसे करना है, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट. And I was very scared to see some of you think कि DU में आने के लिए you have to study general test, which I have told you in like older videos कि नहीं पढ़ना पड़ता है general studies for Delhi University. I did this mistake क्योंकि हम लोग को confirm नहीं था कि general study पढ़ना है कि नहीं. But therefore here I am with this video. But before diving into the strategy and the tips, I have an amazing resource that can help you. The Physics Wala ka Pravesh CUET Commerce 2.0 2025 and Commerce Boards Booster. Now, in this course, you'll get the preparation of boards as well as CUET together. But if you think कि तुम्हें boards नहीं चाहिए, they also have a specific course for CUET, that is Pravesh CUET Commerce for 2025. They offer live and recorded lectures, quizzes, practice test, 24/7 doubt clearing, and much more. If you want कि तुम्हें 12th को भी preparation करना है CUET, then you can go for the combined course. But if you want कि नहीं मुझे सिर्फ CUET की तैयारी करनी है, then you can go for the Pravesh CUET वाला batch. So what are you waiting for? You can use my coupon code for extra discount. Enroll now. The link is in the description. Now that we have discussed the resources, let's move to the tips and strategies. Now, number one, the most important thing is for you to understand कि तुम्हारा क्या preference है, तुम्हें कौन सा course करना है, तुम्हें कौन सा college चाहिए. That is important. You have to understand कि तुम्हारे क्या क्या subjects हैं, तुम्हें किस course के लिए कौन कौन सा subject opt करने की जरूरत है. I've already made a video on this कि कौन कौन से subjects तुम्हें किस किस courses के लिए चाहिए होंगे. You have to figure this out. Google करो, you'll easily get to know. बाकी if you talk about BCom के लिए you only need a domain subject and English in Delhi University. For BHU considers general test के marks. Delhi University does not consider GT in CUET. ठीक है? This was a very major confusion for me and people in my batch during CUET. And हमने पहला महीना ही spend कर दिया था while also studying GT क्योंकि हमें नहीं clear था कि GT actually में नहीं चाहिए for Delhi University. And honestly मेरी preparation last के 10 दिन में हुई है जो वही हुई है. बाकी आधा टाइम ये समझने में लग गया कि what is my syllabus, what I have to study, and I was trying to do everything. मतलब economics honors पे भी focus करने का कोशिश, BCom पे भी, DU भी, BHU भी. So this is not going to work in the last 1 month. Decide what you want and go after it with your full efforts. Now I decided कि DU करना है, तो I left GT का preparation and I left maths का preparation कि BCom ही करना है and Delhi University से करना है. So I focused only on my domain subjects and English. Now in your subjects, you will have any language section and you'll have a domain section and a GT. तो इंग्लिश के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि इंग्लिश इज द गेम चेंजर मेरे हिसाब से. एंड आई से कि यू कैन गो थ्रू वोकैबुलरीज अभी इन दिस टाइम एंड ग्रामर एंड वोकैबुलरीज तुम लोग फोकस कर सकते हो अभी के लिए. एंड अंडरस्टैंड कि CUET में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है बोर्ड्स के सिलेबस से इन डोमेन सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो डोमेन सब्जेक्ट्स में कुछ कुछ डिलीटेड पोर्शन है, वो उस गैप में जो CUET का गैप है एग्जाम का 1 महीने का, उसमें आराम से कवर हो जाएगा. एंड यू विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस. तो 10 क्वेश्चंस छोड़ने का चांस है तुम्हारे पास. एंड ऑल्सो CUET में नेगेटिव मार्किंग होती है. Very important. Now, it is not only about watching lectures. अगर तुम्हारे concepts clear हैं, I'll say कि you start doing MCQs afterwards for domain subjects. तुमने accounts पढ़ लिया, economics पढ़ लिया, BST पढ़ लिया, board से exam देकर आ गए हो. Now start doing MCQ directly. Get yourself books अलग-अलग subjects के. Do at least 3 to 4 books of different publishers for each subject. और मुश्किल नहीं है MCQ लगाना है. You don't have to write question and answers. For general test, I'll recommend कि you can get some course, online course for general test. की प्रिपरेशन करने के लिए if you are aiming for any such courses or university जिसमें GT की requirement हो. And one major query कि I have not opted maths in class 12. Can I still opt for maths and CVTs? तो the answer is yes, you can. बस तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए.
है ना? यू विल हैव 1, 1, 2 कवर, थोड़ा सा तुम्हें कोर मैथ्स के भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो मैथ्स के पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। द फर्स्ट सेक्शन इज कंपल्सरी, जिसमें कोर मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स दोनों होता है ना, एंड देन यू हैव 2 सेक्शंस, वन फॉर अप्लाइड मैथ्स, वन फॉर कोर मैथ्स। उनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो यू विल हैव टू स्टडी कोर मैथ्स कहीं ना कहीं इफ यू आर गिविंग सीयूटी वाला पेपर फॉर मैथ्स। तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर मैथ्स सीयूटी में, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम्हारा 12th में सब्जेक्ट था कि नहीं था। देन आई वांट टू टॉक अबाउट सम कॉमन मिस्टेक्स दैट आई डिड ड्यूरिंग सीयूटी। The number one thing is not understanding what I wanted, not understanding what my preference was. I just wanted to keep a backup कि नहीं बीएचयू भी एज अ बैकअप होना चाहिए, बीएचयू कर ले, ये कर ले, डीयू कर ले, दोनों के लिए पढ़ाई कर लेते हैं। एंड इस चक्कर में कहीं ना कहीं आई कुड नॉट फोकस टू मच फॉर डीयू। तो क्योंकि रिस्की लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। देयर वाज नो वन टू टेल मी कि नहीं, यू डोंट हैव टू स्टडी जीटी फॉर डीयू। लग रहा था कि व्हाट इफ दे कंसीडर जीटी आउट ऑफ नोवेयर। इट वाज वेरी स्कैरी, इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। फिर बाद में जाके समझ में आया कि नहीं, यू विल नॉट कंसिडर जीटी व्हेन यू फिल अप सीयूटी का फॉर्म। नो, वहां पे साफ साफ मेंशन किया रहता है कि द कोर्सेज दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स लगेंगे। आई वाज टेलिंग दिस टू एवरीवन इन माय बैच, इन माय फ्रेंड्स, कि जीटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट दे वर नॉट लिसनिंग टू मी। दे वर स्टिल स्टडीिंग जीटी, को उनको डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाए। एंड आई वाज आल्सो स्कैर्ड देन कि क्या करे क्या करे। दे आल्सो स्टडीिंग, सो आई वाज आल्सो स्टडीिंग जीटी कि हाँ पढ़ लेते हैं, पता नहीं क्या हो पेपर में। पर फिर रियलाइज हुआ कि नहीं करना था। तो because of lack of information and lack of reliable information. So, because of some unforeseen paristithiya, the last part of the video was deleted and I'm recording it again now. I have just some time. I have to go back to college. But let's go. So what I was saying कि because of lack of reliable information, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा नहीं है। But now since 3 बार हो चुका है सीयूटी एग्जाम, तो अब थोड़ा आइडिया है लोगों को कि क्या हो रहा है, या फिर एक थोड़ा पैटर्न समझ में आ रहा है समवेयर कि शायद कैसे एग्जाम्स का पैटर्न है। See, this is a new system, so things are rapidly changing and you have to know कि change is the only constant right now. ठीक है, चीजें चेंज हो रही हैं, बहुत सारी तुम्हारे टाइम में भी चेंजेस होंगे, पेपर पैटर्न में, पेपर कैसे कंडक्ट कराया जा रहा है, एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में, एवरीथिंग। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। वी प्रिपेयर्ड फॉर ओनली राइटिंग द एग्जाम, ओनली फिलिंग द ओएमआर शीट। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर कि मेरे को एग्जाम के बीच में एग्जामिनर विल आस्क मी टू पेस्ट माय पासपोर्ट साइज फोटो ऑन अ शीट इन द सेम 45 मिनट्स, जिसमें मुझे पेपर भी करना है, रिवाइज भी करना है, डिसाइड भी करना है कि कौन से क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं 10। एंड मेरे से 10 जगह सिग्नेचर भी कराएगा वो, मेरे से 10 जगह मेरा रोल नंबर 10 डिजिट का भरवाएगा, 10 डिजिट का मेरा स्कूल नंबर भरवाएगा, 10 डिजिट का मेरा सेंटर नंबर भरवाएगा विद ओएमआर इन इट। इट वाज वेरी टाइम टेकिंग एंड लाइक आई हैड 15 मिनट्स लेफ्ट, आई रिमेंबर, इंग्लिश पेपर में। एंड आई हैड 20 क्वेश्चंस व्हिच आई हैड नॉट इवन रेड वंस। मुझे वो करना था एंड वो एग्जामिनर मेरे पास आके फोटो लगवा रहा है, ग्लू लगवा रहा है, उस फोटो पेन लगवा रहा है कि यार खत्म करो अपना काम। है कैसे करूं? एंड टॉकिंग अबाउट द सीट एंड द बेंच एंड द टेबल दैट वी गॉट, वो टेबल में डर लग रहा था फिल करने में बिकॉज द टेबल वाज नॉट स्मूथ, द सर्फेस ऑफ द टेबल वाज नॉट स्मूथ। तो बहुत स्केरी था कि वो फिल करते करते कहीं फट ना जाए गलती से, देन द मशीन विल नॉट स्कैन इट। तो ओएमआर पे तुम पहली बार पेपर देने जा रहे हो, होपफुली तुम लोग को ओएमआर पे ही हो, क्योंकि हमारे टाइम पे तो चेंज हो गया था। मतलब उसके पहले कंप्यूटर बेस्ड रहता था, हमारे टाइम से ओएमआर पे हो रहा है। नाउ लेट्स सी इस साल क्या होता है। दीज आर बात के थिंग्स। ओएमआर पे प्रैक्टिस करना है इज अ थिंग ऑफ लेटर, वो तुम्हें बाद में करनी है। अभी तुम्हें बेसिक अपने बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है एंड यू हैव टू नो, अगर तुम्हें अभी से तुम्हारे पास टाइम पे बोर्ड्स हो चुका है, यू हैव टू नो कि व्हाट टॉपिक्स यू हैव टू डू, व्हाट सब्जेक्ट्स यू आर एमिंग फॉर। दीज आर द बेसिक थिंग्स। नेक्स्ट, ट्राई नॉट टू फोकस ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक आई डिड, है, एंड जस्ट अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही नया सिस्टम है एग्जामिनेशन का, एंड थिंग्स आर रैपिडली चेंज। एंड बिकॉज रैंक्स लोगों के सेम आए थे, कई लोगों के मार्क्स सेम आए थे, तो हम लोगों को 12th का मार्क्स का एवरेज निकाल के दे लाइक वो रैंक उन्होंने फिर से निकाली। तो कहीं ना कहीं 12th का मार्क्स आई थिंक यूज आया था। सो एनीथिंग कैन हैपन, देयरफॉर आई एम सेइंग कि बोर्ड्स अच्छा करो चाहे जो भी हो। एंड बोर्ड्स अच्छा करोगे तो तुम्हारी सीयूटी की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमेशा रहेगी। इट इज स्कैरी because everything is changing, anything can happen, so it is scary, no doubt, but you will be prepared for anything and have itna faith in yourself कि यार end of the day कुछ भी होता है, I'll manage, whatever happens things will fall into place, things will unfold in the right way, and जितना भी देर हो जाए, whatever time it is, whatever place I am in right now, I will get myself out of this to the place that I want to go, and whatever happens it will always happen in your favor. Just have this much faith in yourself and in your efforts that you're putting, and when you wake up एक बार उठ के gratitude दे दिया करो in whatever or whomever you believe in, and have faith in something or the other. कुछ नहीं तो have faith in yourself at least, that you wake up and be grateful to at least yourself for showing up every day. तुमने 10 में से 4 ही चीजें की है, बट
एंड ऑफ द डे डोंट बीट योरसेल्फ डाउन, क्योंकि यार तुम्हें ना नीचे गिराने सब लोग आएंगे, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर द वन हु कीप्स यू स्टेबल. Don't beat yourself down for not doing the 6 things in your task to-do list. You did the 4 things. You showed up no matter how you're feeling. यार प्रेशर का सिचुएशन मेरे को पता है कि you're trying every day and वो नहीं हो रहा है and you're tired, but you still have to show up and then be grateful to yourself for showing up. Give a pat on your back कि हाँ तुमने कर लिया, इतना तो किया. ठीक है, उसके बाद ये होता है कि हाँ कल और कर लेंगे, कल और मेहनत कर लेंगे, इससे ज्यादा कल एक स्टेप और आगे ले लेंगे, कल विल बी बेटर फॉर श्योर. आज इतना किया ना, हैव फेथ इन योरसेल्फ, हो जाएगा. Okay, now I have to run. So I'll meet you guys in the next video. Up until then, कोई भी further doubts है comment करो, and I hope you all started solving sample papers अभी, no matter what position you are in. Okay, so bye bye, take care, go study, meet you soon.